Education is a long-term marathon, not a small-term sprint for your child. Today we are going to discuss on this topic. Hello everybody, myself Jyoti Jain. Parents are very much concerned and sometimes very much over concerned for the performance of the children in the academics and in the way they study. So today we are going to take a topic, how we can increase their academic marks and the way they learn the things. First of all, many times I have noticed if a child gets less marks consistently for few tests, like half yearly they get less marks, again then unit test again they get less marks, then suppose in finals again they get not the expected marks of the parents. They are labeled as weak children by the teachers, by the neighbors and by the parents themselves. Whenever they meet somebody, they'll say, my child is very weak in maths. I don't know what to do. She doesn't understand anything or he doesn't understand anything. I make him learn so much, I make him prepare so much, but during examination, he or she doesn't present himself and doesn't get the expected marks. Is this the right way, parents, to label your child as a weak child? I have seen so many times, अगर बच्चा 2 बार बीमार पड़ जाता है तो हम लोग उसको बोल देते हैं ये बच्चा तो बीमार ही रहता है. Sometimes if a child get less marks, ये बच्चा तो less marks ही लाता है. When we ourselves is labeling our child in a wrong way, how can we expect that child gets confident? Then parents come and ask me, मैम इसमें confidence कम है, ये भूल जाती है, इसको आता नहीं है या ये कर नहीं पाता है. Who is creating this mindset of a child? Parents, just think twice before saying any negative to your children. And one suggestion I will give you, always give a positive command to your child. Suppose a child is stuck in some maths question, always say, it's very easy. Arey yaar, you are a smart child, you can do it. Try to give this command. If regularly you start giving these type of commands, he or she will have that mindset. As soon as he will see the sum, उसके दिमाग में यही आएगा, अरे ये तो इजी है, ये तो मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. हो सकता है वो नहीं भी कर पाए, तो बोलो कोई बात नहीं, एक बार मैं तुम्हें समझाती हूँ, आप उसके बाद मुझे आप समझाओ. So what happens when a child is explaining you, he gets that thing imbibed in his mind. In previous video of mine also I have discussed this point, कि make your child explain you the things instead of learning. Secondly, avoid rote learning. I have seen so many times in senior classes, if a child is learning some formula in maths, I am just taking maths portion because many times I have heard from the parents that my child is good in all the subjects but maths he finds difficulty. So I am just taking this point today. In class 8th or 9th or even in junior classes, parents try to make rote learning for maths even. You will be surprised to know that. कोई अगर फॉर्मूला आया और उसने पूछा ये कैसे आया, अरे ये छोड़ो कैसे आया, ये देखो ये आया और उसको अप्लाई करो और फिनिश करो. Tell me how many parents are relating themselves in that way. Sometimes parents don't do but teachers do. I am not blaming any teacher, but because lack of time is there in the school and in the tuitions, the teachers say in that way, छोड़ दो कैसे आया, बस करो और आगे बढ़ो. Don't make it. You encourage your child for why it happened. शुरू में टाइम लगेगा, but in the long run it will imbibe in their mind. I think most of the parents will agree with this. The next point is this: don't impose your expectation of marks on your child. Your child can't perform according to your expectation. Suppose a child, I'm just taking some junior class child. Suppose there are sums of mathematics, multiplication and division. The child gets 10 sums of division and 10 sums of multiplication in his exams or in her exams. He does 6 sums right and 4 sums wrong of multiplication, and of division 6 sums right and 4 sums wrong of division, multiplication and division both, like that he does. When he comes home and he tells the performance, मम्मा का एक ही वर्ड होता है, जब तुमको सब कुछ आता था तुम रॉन्ग करके क्यों आ गए, तुमको सब कुछ सिखा कर भेजा था तुम रॉन्ग करके क्यों आ गए.
अरे आप उसके 4 सम्स रॉन्ग मत देखिए, जस्ट सी द कॉन्सेप्ट। अगर वो 6 सम्स करके आया है राइट, दिस मीन्स द चाइल्ड नोज द कॉन्सेप्ट क्लियरली। तो यू जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, always praise your child's effort and hard work, never praise the marks only. Otherwise what will happen in a long run, the child will just work for the marks, not for the concept, and for getting good marks the child will start using unfair means in the school, means cheating कर लेगा बच्चा या कुछ और कर लेगा। तो don't encourage for that, always encourage for the hard work। आप सीधा बोलिए कि हाँ बेटा आपने बहुत अच्छा किया, हार्ड वर्क किया था, you have done well। जो केयरलेस मिस्टेक हुई है ट्राई नेक्स्ट टाइम आप वो भी ना करो। मेक योर चाइल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि नहीं आप नेक्स्ट टाइम और अच्छा करोगे और आप कर पाओगे। तो दिस विल क्रिएट कॉन्फिडेंस इन योर चाइल्ड ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वेन एवर वी स्टार्ट कंपेयरिंग इन एनी फॉर्म, इधर विद द सिबलिंग और इवन विद आवर सेल्फ ऑल्सो, अरे हम तो जब छोटे थे बहुत अच्छा करते थे, तुम नहीं कर पाती हो या तुम नहीं कर पाते हो, नेवर से लाइक दैट, बिकॉज एवरी चाइल्ड thinks whatever you are saying in a very serious note। बहुत सीरियस नोट में बच्चे लेते हैं अपने पेरेंट्स की बात को, मजाक में कही हुई बात भी बच्चों को कई बार बहुत सीरियस हो जाती है। बच्चे रॉन्ग कर रहे हैं, ऑलवेज एनकरेज टू मेक मिस्टेक्स। आपको सुन के हंसी आएगी कि एनकरेज करेंगे मिस्टेक्स के लिए, यस, बिकॉज मेनी ऑफ द रिसर्चेस हैज प्रूव्ड कि द मोर द चिल्ड्रन मेक मिस्टेक्स द मोर दे लर्न। तो जितनी बार मिस्टेक्स करेंगे उतनी बार लर्न करेंगे, एंड दे स्टार्ट वॉकिंग वेरी नाइसली एंड समटाइम्स दे रन लाइक एनीथिंग व्हिच यू कैन इवन नॉट एक्सपेक्ट कि इतना भी बच्चा अच्छा कर पाएगा। स्टार्टिंग ईयर्स में बच्चे गलती करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम होती है, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है, कई बार उनको सब्जेक्ट तो पसंद होता है पर टीचर पसंद नहीं होती है। जब टीचर पसंद नहीं होती तो सब्जेक्ट भी बच्चे पसंद नहीं करते। कई बार क्लास में बच्चे बुलिंग कर रहे होते हैं तो बच्चा माइंड से परेशान होता है, कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस उसमें आ जाती है, उसकी एकेडमिक रिजल्ट्स में आ जाती है। तो ट्राई टू गो टू द रूट लेवल, डोंट जस्ट सी द अबव पॉलिशिंग पार्ट कि इसके मार्क्स नहीं आ रहे। इफ अ चाइल्ड इज सेइंग दैट आई एम लेजी और आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई कांट वर्क हार्ड, दिस मीन्स समवेयर समबडी हैज टोल्ड दैट चाइल्ड रेगुलरली, अनअवेयरली, अंडरस्टैंडिंगली दिस, कि ये जो बच्चे को हम बोल रहे हैं कि तुम तो लेजी हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम बुद्धू बच्चे हो, कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट्स या एज अ नेबर्स, एज अ रिलेटिव्स और एज अ टीचर्स, वी हैव यूज्ड दीज वर्ड्स नॉट इन द नियर फ्यूचर, नियर पास्ट, बट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑल्सो। सपोज योर चाइल्ड इन क्लास 5th or 6th standard, these type of sentences or these type of words have been used to him in the class 2nd or 3rd standard, maybe 4th standard। 2-3 साल पहले की वही बात भी बच्चे के माइंड में बहुत ज़्यादा रहती है कि तुम तो बुद्धू हो, तुमको समझ में नहीं आता क्या, तुमको 4 बार तो समझा चुके हैं पर दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। आई हैव सीन सो मेनी टीचर्स एंड सो मेनी पेरेंट्स, अगर बच्चे को 2 बार समझ में नहीं आया तो एक थप्पड़ पड़ता है उसके सिर पर पीछे से और बोलते हैं कि तुमको बार बार समझा रहे हैं, तुमको आता नहीं है समझ में। अरे भाई नहीं आ रहा, एवरी चाइल्ड इज नॉट द सेम। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको अभी समझ में नहीं आ रहा तो लॉन्ग रन में भी उसको समझ में नहीं आएगा। सेकेंडली, यू कैन मेक योर चाइल्ड डू सम मेडिटेशन, सम ब्रेन एक्सरसाइजेस। मैथ्स गेम्स होते हैं, बहुत सारे मैथ्स गेम्स आते होते हैं, आप उनको वो बोलिए खेलने के लिए साथ में आपके। व्हाट विल हैपन विद दिस कि मैथ्स गेम से बीइंग अ गेम उसको इंटरेस्ट आएगा। जब बच्चा जीतता है, सपोज नॉर्मल गेम है कि मल्टीप्लिकेशन गेम है कि 4 × 5 टाइम्स विल गिव यू व्हाट। अब वो मैथ्स फॉर्म में नहीं कर रहा, वहाँ छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं, वो 4 बार लिखेगा उस चीज़ को, 4 को 5 बार डालेगा तो आंसर विल कम 20, तो उसको इंटरेस्ट आएगा, ओ आई गॉट द राइट आंसर। तो ऐसे बहुत सारे पजल्स होते हैं, बहुत सारे बोर्ड गेम्स होते हैं, मैथ्स के गेम्स होते हैं। आप ट्राई करिए उनको, बच्चों को वो खेलने दीजिए इंस्टेड ऑफ बुक ऑल द टाइम। सेकेंडली, आई वॉन्ट टू से वन थिंग मोर, डोंट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। What happens when you say the same thing again and again, बच्चों का माइंड सेट इम्यून हो जाता है सेम वर्ड्स के लिए। जब आपने बोला पढ़ लो, वो सुनेंगे चल देंगे, वो बोलेंगे हाँ ये तो रोज बोलती हैं। फिर आप कैसे घूमता हुआ आया, आपने बोला पढ़ लो, वो बोलेगा हाँ। दिस व्हाट हैपेंस अगेन एंड अगेन इफ यू से, द चाइल्ड स्टॉप्स लिसनिंग एट ऑल, क्योंकि उसको लगता है ये तो एवरीडे का ही है, चलता है। तो ट्राई टू अवॉइड दिस। सो ऑल दीज थिंग्स
cumulatively you will see when you start following this will really solve much problem of yours. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं एज अ पेरेंट्स, और वो परेशान होना जेन्युइन भी है बिकॉज एवरी पेरेंट वांट देयर चाइल्ड शुड बी सक्सेसफुल, बट बिफोर दैट यू हैव टू ऑल्सो बिकम अ सक्सेसफुल पेरेंट. सक्सेसफुल पेरेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दैट विद एवरीबॉडी. देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल पेरेंट्स. ओनली थिंग इज दैट आपके और आपके बच्चे की बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है, दैट मेक्स यू सक्सेसफुल. आपके और आपके बच्चे की बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है, दैट मेक्स यू सक्सेसफुल. I hope this video will definitely help you. Thank you for watching my video. If you already liked and subscribed my channel, thank you so much. If you are not still subscribed and liked, please subscribe my channel, like this video and give your valuable comments. If you want I should make on any other topic which you really want I should make, then please let me know. Thank you for watching me and my video. Thank you.